Hello everyone, today we are going to discuss second lesson of 9th class physics, force and laws of motion. Okay, in the previous chapter we have seen about motion and I know half part of it is incomplete, but as per requirement now I have to take force and laws of motion. Okay, we'll complete that later. So first question arise in your mind that what is force. ठीक है, फोर्स क्या होता है? तो जब भी हम किसी डोर को ओपन करते हैं या फिर डोर को क्लोज करते हैं तो हमें डोर हैंडल को पुश करना पड़ता है या फिर डोर हैंडल को हम पुल करना पड़ता है. सो दिस मीन्स दैट टू मूव अ बॉडी वी हैव टू अप्लाई फोर्स. ठीक है, सो फोर्स वर्ड कम्स देयर. सो व्हाट इज फोर्स? इट इज़ नथिंग बट पुश और पुल applied to move a body. Okay, force is nothing but push or pull on a body. So by applying force you can move the body. Okay, so we can open or close the door by applying force. When we push the door to open it, we apply force on the door in the direction away from us. Okay, because see, when we push the door we apply when we want to push the door that side and we are standing here, we have to apply force in opposite direction, means the direction of force is away from us. On the other hand, when we want to close the door we will apply pull which is in the direction of. Okay, so push means a force which is applied in the direction which is away from us, or force which is applied away from us, and pull means a force which is applied towards us. Okay, in the direction which is towards us. So you may have cleared about what is force. Force means nothing but push or pull on a body. Okay, and what is push, what is pull, it may be also clear in your mind. So force are used in our everyday action. Okay, means while pulling things, pushing, lifting many things, stretching also. In many activities we use force. For example, when we want to lift a box from one place to another place, we have to apply force over there. When we want to change the position of a body, when we want to move something in our home, when we want to move ourselves, we have to apply force. Okay, so there are some effects of force which we are going to see. First effect, force can make move a stationary body. Okay, first effect, focus here. Force can move a stationary body. मतलब जब हम किसी स्टेशनरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेगी. जैसे कि अगर कोई फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल है विच इज़ केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड इफ ही किक्स द फुटबॉल इट अप्लाइज फोर्स, ही अप्लाइज फोर्स. ठीक है, अगर कोई फुटबॉल प्लेयर if he is kicking the football which is placed on the ground or which is kept on the ground, he is applying force to it and by his force the ball moves. So we can say that force can move a stationary body. force हम apply करेंगे तो stationary body को वो move करेगा. Second effect of force is force can stop a moving body. Very simple it is. If you apply brake to your car or your bicycle, your car or your bicycle will stop. So the brakes applied are nothing but the force and which causes the stoppage of car or bicycle. So we can say that force can stop a moving body. Third effect of force is that force can change the speed of a moving body. If you pedal very slowly to your bicycle, it will move with a slow speed, and if you pedal very fast, it means if you apply greater force, it will change its speed. On the other hand, we can say if someone pull our bicycle from behind, our bicycle will move very slowly, and if someone pushes our bicycle from back, our bicycle will move to start our bicycle will move more fast. Okay, so in this way we can say that force can change the speed of moving body. Next, fourth effect of force can change the direction of a moving body. Okay, this is a very simple, means this effect we can easily understand by taking an example of a cricket. Okay, so when the bowler throws the ball, cricketer applies force and change the direction of that ball. So from that example we can say that force can change the direction of a moving body. And the last effect, I hope you are able to see that force can change the size and shape of a body. Okay, so in our home when our mother needs dough, she applies force to it and its force changes. Okay, so we can say that
sorry, what I have said, she applies force to it and its size and shape changes. So force can change the size and shape of a body. Another example, when we roll the chapati with rolling pin, it changes its shape. We apply force on that rolling pin and फिर चपाती का शेप चेंज होता है. So we can say that force can change the size and shape of a body. So, okay, so in here what we have learned, that what is force, it's nothing but push or pull. Push is in the direction, force which is in the direction away from us, and pull is nothing but a force which is in the direction towards us. Okay, and here we have seen effect of force. First effect, force can move a stationary body. Okay, while taking this we have taken while seeing this we have taken example of a footballer. Then force can stop a moving body. We have taken example of brakes applied to the car. Force can change the speed of a moving body. पेडल का हमने एग्जांपल लिया था कि फोर्स अगर अप्लाई करोगे तुम तो मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज होगा. एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स से हम मूविंग बॉडी के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन, फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी. ओके, नाउ once we learn that what is force, there are two types of force. Two type of forces we have. First one is balanced force and second one is unbalanced force. Okay, so we'll see about balanced force first. In balanced force, the resultant force, or you can say the net force, in balanced force, resultant force is 0. Okay, means if someone is pushing a body from here with X Newton force and someone is pushing a body from here with Y Newton force. Okay, and with these forces they are pushing bodies from two opposite direction, and here the resultant force, as both are equal, the resultant force is 0. Here resultant force is 0. R here I have represented R by resultant force. So here the resultant force is 0, and which is that is the reason that this box is not moving. So balanced force means a force in which the resultant force acting on the body is 0. Means here we can say that all the forces are balanced. That is balanced force. In unbalanced force, the resultant force is not 0, it is acting. Resultant force is not equals to 0. So we can say that forces are not balanced and they are unbalanced forces. Okay, so balanced force, due to balanced force, body will not move. It will try to remain in the stationary position, or we can say it will try to remain in the uniform motion. In balanced force, body will not undergo change in motion. Okay, it will try to be in the stationary state if it is, and it will otherwise it will be try to in the uniform motion if it is in uniform motion. Okay, see, it does not changes its motion. But in unbalanced force, this does not happen so. Okay, for example, if we hold a suitcase in our hand, so all the forces acting on that suitcase, means gravitational force, friction forces, force applied by us, all those forces are balanced, and so it does not changes its position. Okay, so number of balanced forces are applied on the stationary body. बहुत सारे फोर्सेस उस बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं. जैसे कि अभी ये बॉक्स पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो बहुत सारे बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं बॉडी पे, और दो एज दे आर बैलेंस्ड, बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेशनरी पोजीशन. ओके, जैसे कि वो फोर्सेस बैलेंस्ड है तो बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी. ओके, और वैसे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी उसकी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करती है. ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी which is in uniform motion, the body continues to be in uniform motion. But though balanced forces cannot produce motion, balanced forces motion change नहीं कर सकते, मीन्स उस बॉडी की पोजीशन या फिर उस बॉडी की मोशन नहीं चेंज कर सकते, बट बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक a rubber balloon and if we squeeze it with our hands,
तो हम बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने उसे अपने हाथों में रखा है, ठीक है। सो इफ़ यू स्क्वीज अ रबर बलून एंड it is in our hand, we are applying balance force from both the sides, and that's why that is the reason it is not moving, but its shape is changing. So we can say that though balance forces cannot produce motion in a stationary body, but they can change the shape of a body. अगर हम किसी रबर बॉल को या फिर रबर बलून को स्क्वीज करेंगे तो हम दोनों साइड से बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, वो मोशन में नहीं आ रहा, बट उसकी उसका शेप चेंज हो रहा है। सो आई थिंक यू हैव गॉट एवरी पॉइंट अबाउट बैलेंस फोर्सेस। एक बार रिपीट कर लेते हैं। बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स जिसमें सारे जो भी फोर्सेस एक्टिंग हो रहे होंगे उनका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा। जैसे कि हमने देखा था दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है बट वो मैग्नीट्यूड में सेम है, इसीलिए उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है ज़ीरो है। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी मोशन में नहीं होगी। और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन उसी मोशन में कंटिन्यू रहेगी, वो उसकी मोशन चेंज नहीं करेगी। ओके, बैलेंस फोर्स की एक और बात हमने देखी कि बैलेंस फोर्स की वजह से अगर मोशन चेंज नहीं हो पा रही, बट बैलेंस्ड फोर्स विल चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, और हमने उसमें रबर बलून का एग्जांपल लिया था। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट अनबैलेंस्ड फोर्स। सो पहले हमने देखा था अनबैलेंस फोर्स मीन्स फोर्सेस जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, मतलब अभी ये बॉक्स है और उस बॉक्स पे हर तरह से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, चारों डायरेक्शन से हम कहेंगे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, और जो भी फोर्स ज़्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर सपोज़ ये कार है, थोड़ी देर के लिए ऐसे कंसिडर कर लो कि ये बॉक्स नहीं है, ये कार है, तो उस कार पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, पुश फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बाद पुश फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। सो ऐसे केस में ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर नॉट बैलेंस्ड। ओके, सो इन दिस केस फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उसे डाउनवर्ड खींचेगा। ओके, और जो रिएक्शन फोर्स है या फिर हम कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स था वो उसे अपवर्ड पुल करेगा। उसके बाद पुश फोर्स भी है, फ्रिक्शन फोर्स भी है, मतलब यहाँ से पुशिंग फोर्स है, हम यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, उसको फ्रिक्शन है। सो ये सारे बहुत सारे फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहे थे। एक एग्जांपल है ऑल द फोर्सेस, सारे भी जितने भी फोर्सेस अप्लाई होंगे उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स में वो ज़ीरो होगा। बस यही इतना कंसेप्ट है, ठीक है। सो टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विथ अ ग्रेटर फोर्स दैन द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब हमें अगर तुम्हें किसी बॉडी को अगर यहाँ से हमें पुश इस डायरेक्शन में करना है तो हमें इन सारे फोर्सेस को कैंसिल करना होगा, ये फोर्स ज़्यादा रखना होगा सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर सकेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये कोई बॉक्स है सेम वैसे पोजीशन और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्स फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इस केस में एक्स फोर्स वाई फोर्स से ज़्यादा है, तो एक्स फोर्स वाई फोर्स से ज़्यादा है, सपोज एक्स फोर्स 10 न्यूटन का है एंड वाई फोर्स 8 न्यूटन का है, तो एक्स फोर्स ज़्यादा है। अगर हम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आएगा, मतलब इसमें से 8 कैंसिल कर जाएगा, और 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा बिकॉज एक्स इज़ ग्रेटर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है, और बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो जो भी फोर्स ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम सूटकेस होल्ड कर रहे हैं हैंड में, तो पहले कंडीशन में हमने देखा था कि बैलेंस फोर्सेस से जब तक हम उसे पकड़े रहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स जितना फोर्स उस पर अप्लाई कर रही है उतना ही फोर्स हम अपने हाथों से लगाएंगे, हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारे हाथ पेन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो बैलेंस फोर्स हो गया। बट जैसे ही हम उसे थोड़ा लूज छोड़ेंगे या फिर अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और हमारा अप्लाई किया हुआ फोर्स कम हो जाएगा, या तो फिर वो नहीं भी होगा। तो इस केस में दैट सूटकेस विल फॉल डाउन, और क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन तैयार हो जाएगी और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, तो वो सूटकेस नीचे गिरी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर concept about balanced and unbalanced
ठीक है, हमने एक और चीज़ देखी थी कि बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी बॉडी को मोशन में नहीं ला सकता, बट अभी यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे न्यूटन का फोर्स होगा तो इसने मोशन किया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स से हम किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो कंटिन्यू टू एक्ट होते रहेगा जब तक उससे कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। मतलब जब तक सपोज़ यहाँ से कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगा तब तक ये टू न्यूटन की फोर्स से मूव ही करता रहेगा। बट हम अब अगर ये कंडीशन कब होगी, जब कोई भी फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होगा। बट ऐसे नहीं होता है, अगर कोई बॉल को भी हम पुश करें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है बिकॉज ऑफ ग्राउंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब भी हम कभी भी ये कहते हैं कि सपोज लेट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हमेशा वो अनबैलेंस फोर्स होता है, तभी तो वो बॉडी मूव करेगी। बिकॉज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, दोनों में अनबैलेंस फोर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारे सराउंडिंग में जो बॉडीज़ जो मूवमेंट में होती है, मतलब जो मूव कर रही है, तो उन पर अनबैलेंस फोर्स से एक्ट होता है। चलो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सॉरी, आई हैव रिटन लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए हैं जिससे हम किसी बॉडी की मोशन डिस्क्राइब कर सकें। तो हम 1 बाय 1 तीनों लॉज को देखेंगे। सबसे पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखने की कोशिश करती है। मतलब अ बॉडी ट्राई टू रिमेन इन मोशन, मतलब कोई बॉडी जो है वो उसके मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी जब तक हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई बॉडी जो है वो उसी मोशन में रहने की कोशिश करेगी। इसका मतलब सपोज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल ले कि हमने किसी बुक टेबल पे रखी है, तो वो बुक, अगर हमने टेबल पे कोई बुक रखी है तो वो बुक जो है खुद से उठ के दूसरी जगह पे नहीं जाएगी या फिर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगी जब तक हम उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि बुक वो टेबल पे है, इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और अदरवाइज वी कैन से इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द मोशन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहेगी। या फिर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, अपनी स्टेट ऑफ मोशन वो मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अ बॉडी ट्राई टू रिमेन इन मोशन या फिर ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम उसको फोर्स अप्लाई नहीं करते, जैसे कि हमने बुक का एग्जांपल लिखा, अगर वो टेबल पे रखे, जब तक हम उठा के उसे दूसरी जगह नहीं रखते वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी। और ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन मोशन, ठीक है, कोई बॉडी, अगर हम बुक कहेंगे तो बुक की जो टेंडेंसी है या फिर किसी भी बॉडी की टेंडेंसी है टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन, ठीक है, वो अपोज करती है रेजिस्ट चेंज इन मोशन। किसी बॉडी की प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन इज इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है कि कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है, वो खुद की मोशन में चेंज नहीं होने देती है, और उसकी यही जो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट टू चेंज इन मोशन इज़ इनर्शिया, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है किस चेंज इन मोशन में, तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट इनर्शिया is directly proportional to force. Greater the inertia, greater the force has to be applied. जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी का, उतना ही ज़्यादा फोर्स हमें उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये इनर्शिया मेजर करने के लिए हम मास कंसिडर करते हैं। मास इज द मेजर टू मेजर द इनर्शिया। ओके, मास इज यूज टू मेजर द इनर्शिया। सो ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर द फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू मूव इट। ठीक है, किसी बॉडी का, किसी थिंग का अगर
वेट ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा. हेवियर द ऑब्जेक्ट, हेवियर मोर द फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड. ठीक है. सो ग्रेटर द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. अभी हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में देखा कि कोई बॉडी जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो स्टेशनरी ही रहेगी. तो ये एक पार्ट हो गया. सपोज़ यहाँ पे एक कॉइन है और ये एक कार्ड है. ओके, ये एक कार्ड रखा है और यहाँ पे एक कॉइन रखा है और नीचे ग्लास रखा है. ठीक है. सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू दिस कार्ड, ठीक है, जब हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कार्ड इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा. बट एज द फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड टू द कॉइन, it will try to be in the it will try to maintain its position. If a force is not applied to this coin, it will try to maintain its position, it will try to maintain its motion due to its inertia. और ये कार्ड मूव करेगा और ये जो कॉइन है वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा. कार्ड मूव कर जाएगा और कॉइन नीचे ग्लास में गिरेगा. ठीक है. बिकॉज दोनों रेस्ट में थे, दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में थे. बट जब हमने कार्ड को हिट किया तो फोर्स जो है वो कार्ड पे एक्ट हुआ. तो कार्ड का इनर्शिया तो हमने ओवरकम कर लिया, बट जो कॉइन था, जो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, उसने अपना इनर्शिया मूव नहीं किया है, तो वो फोर्स कॉइन पे एक्ट नहीं हुआ है. इसलिए इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा. उससे हम, ठीक है. सो ये है इनर्शिया. नेक्स्ट पार्ट था न्यूटन फर्स्ट लॉ का कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो अपनी स्टेट में ही रहेंगी जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स ने अप्लाई करते. ठीक है. तो हम ये सेकंड पार्ट देखेंगे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. इट विल कंटिन्यू टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू. ठीक है. जैसे हम कहेंगे अगर हम कार में बैठे हैं और कार में if you are traveling in the car and if you apply brakes you will feel jerk. ठीक है. अगर हम सडन ब्रेक्स अप्लाई करेंगे या फिर हम बस में हैं, सडन ब्रेक अप्लाई करेंगे या फिर बस के सडन स्टार्ट होने से हमें जर्क फील होता है. दैट जर्क इज़ बिकॉज, ठीक है, अगर ऐसे हम बैठे, अगर कोई एक पर्सन है और वो बस में बैठा है और बस इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में जर्क अप्लाई करता है. दिस इज़ बिकॉज उसकी इनर्शिया ऑफ दैट पर्सन, कि उस पर्सन की बॉडी का इनर्शिया है जिसकी वजह